Onkar Prasad held on to dear life, his hand firmly on the door handle of the tattered bus. Its only source of music was the metal rumblings accorded to it by the horrible road it was merrily trudging on. And save a few enthusiastic people on bicycles that overtook it, it was his fastest means of transport that would drop him on the main road that was supposed to connect to his village. The journey hadn't been an easy or even a short one, but he had undertaken it often and was now what many called an expert at it. He watched the bus disappear into the cloud of dust that followed it, almost appearing to fully envelop it at times. He turned and started walking quickly in the direction of a faraway mountain. He knew soon his life was about to change completely, and he was excited and scared at the same time. Crossing the numerous fields and tempting mango groves, he would glance at his watch often, taking rest where necessary. He was a primary school teacher in a nearby city, and only a few weeks prior had given his students a lecture on punctuality. He knew it'll be an hour or so before he could make it on foot. It was a regular summer in Sarai, a remote village tucked away in an unheard of corner in the central state of Madhya Pradesh in India. Hot, dry winds, or Loo as the locals called it, laced the life of its few inhabitants, who were still waiting upon their chance to get access to basic amenities like road and electricity like many other Indian villages. Onkar's family was eagerly awaiting his arrival, as the Pandey family was also in fact eagerly awaiting the arrival of their first child. Soon after, his beautiful wife Chandrakali gave birth. A boy was born into the Pandey family. No ordinary boy at that. The year was 1963. The first of the three Narayan sons, Lalan, was born into a home with two things aplenty: love and hardships. Being a teacher's son, he had fewer clothes to wear than books to read, but he considered himself fortunate enough, as it was these books that became his first love. As years rolled on, the boy likely went about his life with very basic goals and aspirations. His dreams were small to begin with, as he was still learning to dream. Little did he know he had a tough journey ahead that will demand plenty from him and the family. From teaching village children to be able to fund his own tuitions, to the family having to sell what little they had to fund his essentials for the Rangers College admission. He toiled with an aspiration to be able to provide for his family and make a name for himself. His life became a voyage that needed him to don many hats and become a master of many trades. And at that point, he probably did not realize he'd go on to make a name for himself that will be known far beyond the teeny tiny corners of his village, his state, or even his country. Or that he'd go on to lead a life that many will draw inspiration from. So here's a toast to his journey, the boy, Deep Narayan Pandey. हम लोग बुआ के लड़के की शादी में गए थे वहाँ, तो ये भी अपने ताऊ जी के साथ आए थे और हम भी अपने माँ पिताजी के साथ गए थे। 83 में सिलेक्शन हुआ रेंजर्स में, तो कुछ वहाँ से बहुत सारी चीज़ें तैयारी में थी कि हमको कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए, तो पूरा ड्रेसअप चाहिए था। उसमें करीब 4-5 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी। फादर थे इनके, उसमें टीचर थे, टीचर के पास उनको शायद 2-2.5 हज़ार रुपये उस समय तनख्वाह मिलती रही होगी उस ज़माने में।
ये बहुत लंबा समय हो गया। तो मैंने कहा कि ये ट्रेनिंग में तो जाना पड़ेगा, तो हम कुछ खेत वेत बेच देते हैं। फिर ये हुआ कि नहीं, खेत नहीं बेचेंगे अपन, खेत में बेच देंगे तो फिर जो खेती थोड़ी बहुत होती है कैसे काम चलेगा उसमें। तो 2-3 तोला सोना लेके 5-6 हज़ार का सोना बेचा और इनका पूरा सामान खरीद के जबलपुर ट्रेनिंग के लिए गए। रेंजर ट्रेनिंग में गए तो वहाँ पहली बार जब शायद गांव से एक आदमी जब शहर जाता है तो काफ़ी परिवर्तन देखा होगा। और जब मैं बाद में 1 साल बाद आई तो मैंने भी काफ़ी अपने आप को देखा। 2-3 घंटे 4 घंटे ही सोना होता था। जितना भी मौका मिलता था, कभी घर में अगर 1 घंटे आधे घंटे ही, तो उसको कहीं ना कहीं से वो पढ़ते रहते थे। उसको ट्यूशन पढ़ना पड़ता था इनको, उसके लिए वहाँ 20-25 रुपये की ट्यूशन 8-10 लड़कों को पढ़ाते थे गांव में। तो करीब 100-150 रुपये वहाँ मिल जाते थे। करीब 150 रुपये इनको एक प्रोफेसर थे सिन्हा साहब, उनको देते थे। उसके बाद उन्होंने ऐसे ही एक दिन पूछा कि इन्होंने 2 बार पैसे दिए उसको, एक बार शायद 50 रुपये दिए और एक बार 100 रुपये दिए। उन्होंने पूछा क्या ऐसा हो गया, तो फिर बताया कि भाई मेरे पिताजी तो प्राइमरी टीचर हैं, तो मेरे पास होता नहीं तो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उसके बाद पैसे इकट्ठा करके फिर आपको। उसके बाद से उन्होंने फिर अपने बेटे जैसे उनको रखा सिन्हा साहब ने, और ट्यूशन का पैसा फिर नहीं लिया उनसे। साइकिल और घड़ी इनको कॉलेज जाने के लिए, इनके चाचा जी की शादी हुई थी तो साइकिल इनको उस समय मिल गई थी। तो अपने शौक़ के नाम से तो कुछ भी नहीं था एक हिसाब से। एक शर्ट पैंट का भी कम पड़ता था, तो खादी का कुर्ता और पैजामा ही पहन के कॉलेज भी जाते थे। तो वही कपड़े होते थे, 2 जोड़ी घर से धुला के ले जाते थे, वहाँ खड़े होकर कहीं सतना में प्रेस करवा के और पहन के फिर कॉलेज चले जाते थे। सबसे पहले तो जब उनका रेंजर में सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुश हुआ था पूरा इलाका हमारा कि भाई बहुत अच्छी जगह हुआ। उसके बाद जब 1 साल ट्रेनिंग का निकल गया तो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। फिर एसएफएस की ट्रेनिंग में गए कोयम्बतूर, वहाँ भी सिल्वर मेडल मिला, वहाँ भी काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छी इन्होंने तैयारी की आईएफएस की। फिर बाद में 94 में इनको IBPM जो अवार्ड मिला था, उससे काफ़ी अच्छा खुशी हुआ। काम करते थे जब तो काफ़ी लोग जब ऊपर से मिलता है कि चलो भाई बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो मोटिवेशन हमेशा मिलता रहा है ज़िंदगी में जो भी है आगे बढ़ने का। इतनी दूर तक पहुंचने के लिए श्रेय सभी परिवार वालों का भी रहा और सभी साथियों का भी रहा, बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहा, आगे ऐसे बढ़ते गए। जैसे सब बच्चे शाम को पिताजी का इंतज़ार करते हैं, हमने उनका महीनों या सालों में इंतज़ार किया। लेकिन उनकी जब वो महीनों में या सालों में आया करते थे तो वो सिर्फ मेरी तरफ या हमारी तरफ देख लें, उस पल का हम इंतज़ार किया करते थे। हम उनको छुप छुप के देखा करते थे कि पापा हमको देखें और हम बस मुस्कुरा दें। उन्होंने अपने साथ हमेशा हर पल साथ भी रखा, सिखाया भी। लेकिन इतना अपने आप में इतना बिज़ी थे, इतना काम में बिज़ी थे कि उनके लिए किसी भी पल को जीना कि चलो घूमने चलें, चलो किसी के यहाँ मिल के आ जाएं, वो तो ना हमें बचपन में याद है और ना हमें वो आज याद है। बच्चे स्ट्रगल माँ बाप का बहुत कम देख पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उस समय पेरेंट बनते हैं जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं और वो अपनी लाइफ में पूरे सेटल हो चुके रहते हैं। लेकिन हाँ, ये सौभाग्य हम दोनों को मिला है, या स्पेशली मुझे मिला है कि मैंने उनको पढ़ते हुए भी देखा है कि वो अपने परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं या किसी भी काम को वो किस तरीके से अंजाम देने की कोशिश करते थे कि मैं अपना बेस्ट कैसे दूँ। तो जो लोग कहते हैं कि हाँ जिसको पढ़ना होता है, जिसको निकलना होता है, वो कहीं से भी निकल सकता है, चाहे वो रिक्शे वाले का बच्चा हो, चाहे वो ऑटो वाले का बच्चा हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाला बच्चा हो, और चाहे जिस परिवेश में वो पैदा हुए। मिट्टी का घर भी पूरा नहीं था, सिर्फ एक बाड़ हुआ करती थी, जो बाड़ आज भी मुझे कुछ कुछ धुंधली सी याद है, और उसी घर से वो पढ़े हैं। और वो सब करते करते भी कभी रात दिन उन्होंने नहीं देखा कि मेरे दादा को, मेरे चाचा को, मेरे पास वाले गांव के किसी इंसान को कुछ मदद चाहिए रही हो।
तो उनको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि बेटा ये मदद आप कर दो। जिस जगह से वो आए हैं और जिस जगह तक आज वो पहुँचे हैं, उस लंबी यात्रा को सोचना और समझना दोनों ही बहुत मुश्किल है। तो पहले का स्ट्रगल तो खैर उनका अकेले का रहा। तो सुबह उठकर खाना बनाना, घर का काम करना, पढ़ाई करना, 7-8 किलोमीटर दौड़ के स्कूल पहुंचना, वो अपने आप में एक ऐसी जर्नी थी जिसके लिए विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना एक जो ज़िंदगी का मकसद बनाया और गरीबी के अभिशाप को दूर करने के लिए पढ़ाई और मेहनत, उसके अलावा उन्होंने कभी कोई दूसरा जरिया नहीं सोचा, ना उनके कभी समझ में आया। वो यही कहते थे कि गरीब होना ही अपने आप में बहुत बड़ा अभिशाप है और उससे आप तभी निकल सकते हो जब आप बहुत अच्छा पढ़ो। पढ़ने के साथ साथ जो भी आपका ज्ञान है, आप उस ज्ञान को जोड़ सको काम से। उन्होंने कहा आप सबकी मदद करते रहो, आप किसी की तकलीफ़ में खुश अगर नहीं होते हो, आप सबकी मदद करते रहते हो, तो ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करता है। आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर सामने लाता है, या किसी न किसी ऐसे इंसान को आपके उस रास्ते में लाके खड़ा कर देता है कि वो आपके लिए इंसान नहीं भगवान के रूप में होते हैं। पापा को ऐसे मतलब हर जर्नी में, चाहे वो ACF रहे हों, चाहे IFS रहे हों, चाहे स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में रहे हों, या घर में रहे हों, गांव में रहे हों, या आज भी जिस जगह तक पहुँचे हैं, ईश्वर की कृपा से उनको आशीर्वाद के रूप में, साथ के रूप में, गुरु के रूप में, गाइडेंस के रूप में उन्हें हमेशा किसी न किसी का हाथ हमेशा ही मिला है। तो वो शायद मैं समझती हूँ कि जो उनकी सोच है कि आप बस दूसरों की मदद करते रहो, आपकी मदद के लिए ज़रूर कोई ना कोई, किसी न किसी को ईश्वर भेजेगा। तो बस उनकी लगन और मेहनत, उन्होंने कभी किसी काम को अगर शुरू किया है तो उसको कभी बीच में नहीं छोड़ा, वो उसको उन्होंने पूरा करके ही दम पाया है। वैसे तो हर माँ बाप यही चाहता है कि बच्चे उनसे आगे निकलें, उनके लिए उससे गर्व की कोई बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, हमको ये लगता है, या मुझे ये लगता है कि अगर पापा जितनी मेहनत करते हैं, या जितना उनकी समझ है, समझ उनकी ऐसा नहीं है कि उनको सब बाय बर्थ मिला हुआ है। उनकी सिर्फ निष्ठा, उनकी सिर्फ लगन ही है जो उनको उस धरती वाली जगह से जहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ से जहाँ भी आज तक आए हैं इस लंबी यात्रा में, बस यही चीज़ें हैं कि वो अपने इस काम को करते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो अगर उनका हमें 10% भी मिल जाता है, या हम उनका 10% भी सीख लेते हैं, तो वो हमारे लिए क्या, किसी भी इंसान के लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्याप्त है।